اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامر صبر افطار، یہ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، سبسکرائبر بھی ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے۔ دیکھیں، انگوٹھے کا جو فرسٹ پور ہوتا ہے نا، فرسٹ پھیلنج جو ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے انسان کی ول پاور کا۔ تو ول پاور ان کی ماشاءاللہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور کوئی بھی کام کریں گے یہ پکے ارادے کے ساتھ کریں گے، مضبوط ارادے کے ساتھ کریں گے، اور اپنے کام کو مکمل بھی کریں گے۔ سیکنڈ پور جو ہے وہ بھی اچھی لینتھ میں ہے، تو یہ بتاتا ہے سوجھ بوجھ کا، پلاننگ کا۔ تو ماشاءاللہ سوجھ بوجھ اور پلاننگ بھی ان کی اچھی ہے، کوئی بھی کام کریں گے بڑی پلاننگ کے ساتھ کریں گے، اس کام کے اچھے پہلوؤں پر بھی غور کریں گے اور برے پہلوؤں پر بھی غور کریں گے۔ اور اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں گے، جو فرسٹ پور ہے وہ چھوٹا ہے اور سیکنڈ پور بڑا ہے۔ سیکنڈ پور بتاتا ہے سوچوں کا، پلاننگ کا، اور جو فرسٹ پور ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ اس کام کو کتنے اچھے طریقے سے مکمل کریں گے، وہ آپ کے ارادے کی مضبوطی بتاتا ہے۔ تو یہاں پہ انگوٹھا یہ بتا رہا ہے کہ یہ پلان تو بہت کرتے ہیں، سوچتے بہت ہیں کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، لیکن جب اس کام پر عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے، ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اس کام کو شروع نہیں کر پاتے، یا تو کام شروع نہیں کر پاتے، یا پھر بیچ رستے میں یہ اپنے کام کو بعض دفعہ ادھورا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اپنی ول پاور کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ کوئی کام کریں تو اپنے کام کو مکمل بھی کریں۔ یہاں پہ ایک خوبصورت آنکھ بنتی ہے۔ دیکھیں جی، جب آپ کے انگوٹھے پہ اتنی خوبصورت آنکھ بنے تو ایسے لوگوں کا بڑھاپا بڑا اچھا ہوتا ہے، سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے، فیس ریڈنگ بڑی زبردست کرتے ہیں، اور روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ چیزیں ملتی ہیں، اپنوں کا ساتھ ملتا ہے، اپنوں کی محبت ملتی ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کی آنکھ ڈسٹرب ہو تو پھر جتنا اچھا آپ اپنے کام پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، آپ اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ جس قدر آپ نے زندگی اچھی ڈسپلن کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، اس چیز کی بھی تھوڑی کمی ہوتی ہے، تھوڑی سی لاپرواہی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، دوسروں کی باتوں میں آ جانا، دوسروں پر اعتبار کر لینا، یہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ایسا انسان زندگی میں دھوکے بھی کھاتا ہے، اور ایسے انسان کی زندگی میں مشکلات، سٹرگل، پرابلمز بہت آتی ہیں۔ اس کو اپنے رشتے بھی چیٹ کرتے ہیں بعض دفعہ، اور ایسا انسان بعض دفعہ اپنے یاروں دوستوں سے بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو اس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو ان کا فیملی کا رنگ ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ایک زنجیر ہونی چاہیے اس طریقے سے، اور یہ ایک ہی لائن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسے گڈ مڈ گڈ کر کے دو تین لائنیں آپس میں مکس ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان کی یہ جو فیملی والا رنگ ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ جب فیملی والا رنگ ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان کی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے اس میں لازمی ڈسٹربنس آتی ہے۔ امی ابو کی زندگی میں بھی مشکلات، پرابلم ہو سکتی ہیں، بچپن تھوڑا سا پرابلم میں گزر سکتا ہے، اور میرج میں بھی، جو بھی انسان کی پہلی شادی ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ مشکلات، کچھ نہ کچھ پرابلم انسان کو ضرور دیکھنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم نے انگوٹھے سے ہی اندازہ لگا لیا کہ جو بھی ان کی پہلی میرج ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ ایشو، کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور آئیں گے، اور اس کے علاوہ ہم نے انگوٹھے کی یہ جو ان کی آنکھ صحیح نہیں بن رہی، اس سے بھی ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ان کی چونکہ آنکھ ڈسٹرب ہے، تو اس لحاظ سے ان کو زندگی میں مشکلات بہت دیکھنی پڑیں گی، کام میں مشکلات آئیں گی۔ ابھی یہ باہر کے ملک چلے گئے ہیں تو وہاں پردیس میں انسان کو بہت زیادہ سٹرگل دیکھنی پڑتی ہے، کام کے معاملات خراب ہوتے ہیں، جاب ٹھیک طریقے سے نہیں چلتی۔ اس کے علاوہ پردیس میں اور بڑی طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، رہائش کے مسئلے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے پرابلم ہوتے ہیں، کیونکہ بالکل آپ کا پانی چینج ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے کبھی کبھی آپ کی صحت بھی گڑبڑ کرنے لگتی ہے۔ زندگی میں سٹرگل، مشکلات، پرابلم ان کو دیکھنی پڑیں گی، یہ ان کے انگوٹھے نے بھی بتا دی ہے۔ اور ابھی ہم ان کے لیفٹ ہینڈ پہ جائیں گے۔ لیفٹ ہینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ہتھیلی ان کی لمبی ہے اور انگلیاں اس حساب سے تھوڑی چھوٹی ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ فائر ہینڈ ہے، ہتھیلی لمبی ہو، انگلیاں چھوٹی ہوں، تو ایسے لوگ جو ہے اس ہاتھوں کی چار قسمیں ہیں، تو یہ فائر ہینڈ ہے۔
फायर हैंड में हथेली आपकी लंबी होती है और उंगलियां थोड़ी छोटी होती हैं। तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, और लेकिन ऐसे लोग होते बड़े क्रिएटिव हैं, ज़हीन होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर बेतहाशा एनर्जी होती है। ये एक जगह पे इनसे बैठा नहीं जाता, टिक के काम नहीं करते, यानी कि ये हर वक्त इनका दिल करता है कि ये कुछ ना कुछ करते रहें और आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं, और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देता है। सिर्फ इनके अंदर एक खराबी है कि ये जज्बाती बहुत होते हैं, दिल की बातें बहुत मानते हैं, और दिल की बातें मान के ये अक्सर धोखा भी खा लेते हैं। अब जनाब इनके हाथ को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं लाइफ लाइन को। तो लाइफ लाइन देखिए, शुरू में डिस्टर्ब है, ठीक है जी। तो बचपन बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक सेहत के इशू भी थोड़े हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी घरेलू ज़िंदगी है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या सेहत के हवाले से इन्होंने प्रॉब्लम देखे, या इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम थे, तो बचपन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रही है। हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं और घरेलू टेंशन भी हो सकती हैं। ये होता है आपका अंदरूनी उबार। अगर यहाँ पर कोई लाइन इस तरीके से मौजूद हो और कुछ लाइनें यूँ नीचे की तरफ भी गिर रहे हों, तो ये अंदरूनी मंगल का उबार होता है। कल मैं जब आपको उबारों के मतलब बता रहा था, तो मैंने इस उबार का जिक्र किया था कि ये मरीख का उबार है। यहाँ पर आपकी दिल की लाइन का कनेक्शन इधर से हो जाए, यानी कि आपकी दिल की लाइन यहाँ से शुरू हो रही हो, या दिल की लाइन से कोई सॉरी दिमाग की लकीर, ये ब्रेन लाइन है आपकी, ब्रेन लाइन का कनेक्शन अगर अंदरूनी मंगल के साथ हो जाए, या जिंदगी की लाइन से कुछ शाखें नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएं, तो ऐसे लोग बड़े जल्दी गुस्से में आने वाले होते हैं, जल्दी गुस्से में भड़क उठते हैं और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की जो लकीर है वो लहरदार होके चल रही है ऐसे। जब दिमाग की लाइन लहरदार होके चलती है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान की सोचें बदलती हैं वक्त के साथ साथ, और इनके मूड भी स्विंग होंगे, क्योंकि दिल की लाइन की हालत भी आप देखें ना, तो दिल की लाइन भी यूं करके यूं जा रही है। तो जब दिल की लाइन में भी उतार चढ़ाव हो, दिमाग की लाइन में भी उतार चढ़ाव हो, तो एक तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, मुश्किलात बहुत आएंगी, और जो इनका माइंड है वो भी बड़ा चेंज होगा। दिल के अंदर जो इनके जज्बात होंगे, जो मोहब्बत के जज्बात होंगे, वो भी मूड भी इनके स्विंग करेंगे, कभी खुश, कभी बिला वजह उदास, कभी डिप्रेशन, ये चीज़ें इनके अंदर आएंगी। और जो दिमाग की लकीर है वो ये बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में पल पल ये चेंज लेंगे। एक चेंज तो ये तकरीबन लेंगे 35-40 पे जाके, और दूसरा चेंज लेंगे ये 45 के करीब, एक 35-40 के करीब, और दूसरा 45 से 50 के करीब लाजमी ये चेंज लेंगे। और यही चेंज फिर इनकी दिल की लाइन भी बता रही है कि यहाँ पर भी इनका चेंज ये लेंगे, यहाँ पर भी इनकी एज तकरीबन 45 से 50 बन जाती है, तो चेंज ये लाजमी लेंगे। और उसके अलावा अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन इनकी भरपूर लंबी है, दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। जब दिमाग की लाइन के साथ आपकी ब्रेन लाइन जुड़ी होती है तो ये बताती है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, ठीक है जी। बातों को दिल पे लेते हैं, और इस तरह ये वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, और वीनस माउंट पर ये जो कामयाबी की लाइनें हैं ये थोड़ी वीक हैं, तो उस लिहाज से औलाद पैदा करने के लिहाज से भी इनको थोड़ी बहुत मुश्किलात इनको पेश आ सकती हैं। इनके औलाद थोड़ी सी पैदा होने में मसले बनेंगे, थोड़े से कोई वीकनेस हो सकती है, थोड़ी बहुत इनकी वाइफ के अंदर वीकनेस हो सकती है, तो औलाद पैदा करने में या औलाद के होने में मुश्किलात ज़रूर आती हैं। यहाँ पे अगर बड़ी बड़ी लाइनें हों तो एक तो अल्लाह ताला आपको रुपया पैसा भी देता है, और अगर बड़ी गहरी लाइनें हों तो इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ी गहरी लाइनें होती हैं वो बेटों की होती हैं, और जो हल्की लाइनें होती हैं बेटियों की होती हैं। तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देता है अगर यहाँ पर गहरी लाइनें मौजूद हों तो। और इसके अलावा औलाद के लिए आप यहाँ पे ये जो अंगूठे की यहाँ पे जो जंजीर बनती है, जो बड़ा डाट होता है वो बेटों का होता है, और जो छोटे डाट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, तो ये बता रही है कि ये, और नीचे जाके ये 2 शाखा भी हो रही है। तो जब भी ज़िंदगी की लाइन लंबी हो तो ये लंबी ज़िंदगी की लकीर बताती है कि इनको रुपये वैसे की भी कमी नहीं होगी, और बड़ी सेहत वाली इनकी ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला इनको तवील सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। और जब ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा होती है तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी फ़ौरन सेटलमेंट ज़रूर होती है, वो बाहर के मुल्क ज़रूर जाते हैं, और ये अरब ममालिक में भी जाएंगे, और उसके बाद आगे ये यूरोप की तरफ भी मूव करेंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला यूरोप में भी इनके पेपर बन जाएंगे।
इनकी फौरन सेटलमेंट हो जाएगी। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये मून माउंट है, मून माउंट से हम आपका बाहर का सफ़र देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस्मत की लाइन कितनी गहरी है, और ये शुरू भी मून माउंट से हो रही है। तो यही लाइन जो है इनको बाहर के मुल्क ले गई है। 2-3 साल पहले इन्होंने मुझसे रीडिंग करवाई थी, तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं बाहर के मुल्क चला जाऊंगा। तो मैंने इनको कहा था कि 100% आप बाहर के मुल्क चले जाएंगे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 साल 2 साल के बाद ये बैरून मुल्क चले गए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आगे भी जाएंगे और सारी दुनिया घूमेंगे। यहाँ पे देखें तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र से ये इनकी किस्मत की लाइन जो कि सफ़र की लाइन के तौर पर भी काम कर रही है, जिसने इनको ट्रैवल करवाया है। 27-28 पे जाके किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम होती है। तो 27-28 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक लेफ्ट हैंड तो ये कह रहे हैं कि रुपया पैसा तो आएगा लेकिन सेविंग नहीं कर पाएंगे, और थोड़ी सी मुश्किलात परदेश में इनको देखनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल अभी इनका वो टाइम स्ट्रगल वाला जारी है, परदेश में पहुंचे हुए हैं। तो ये अगर लाइन ज़्यादा गहरी होती ना, इतनी गहरी होती, और फिर यही लाइन आगे चली जाती सैटर्न माउंट पे, तो फिर इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियाँ आनी थी। जबकि यहाँ पे दिमाग की लाइन जो है ये इस तरीके से 2 शाखा हुई है, जो बताती है कि ऐसे लोग इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं, और ऐसे लोगों को 2 काम दे दिए जाएँ, 3 काम दे दिए जाएँ, तो ऐसे लोग बआसानी के साथ वो काम कर लेते हैं। सन लाइन पे एक हल्का सा इस तरीके से एक ऐसे क्रॉस सा बने, लेकिन ये कि यहाँ पे अगर ये इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बना, तो ये ट्राइंगल इनको नेम फेम के लिहाज से भी, दौलत के लिहाज से भी ज़रूर फ़ायदा देगा। 45 पे यहाँ पे इनकी 2 लाइनें शो हो रही हैं, तो उम्मीद है कि 45 के बाद इनके हालात ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। 45 साल की उम्र, 45 से लेकर 50 साल की उम्र में इनको 2 जगह से इनकम आएगी, और यहाँ पे फिर सैटर्न की लाइन थोड़ी सी वीक ज़रूर है, लेकिन उम्मीद है कि बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और ये दिल की जो लाइन है ये आगे तक जा रही है जुपिटर माउंट तक। अगर दिल की लाइन आपकी जुपिटर माउंट तक चली जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ भी माइल होते हैं, लेकिन दिल की बातें बहुत मानते हैं, दिल से रिलेटेड थोड़े से जज्बाती होते हैं, इनके अंदर ईगो आ सकती है, जिद आ सकती है, तो इन चीज़ों से इनको बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम इनका देख लें राइट हैंड, तो राइट हैंड भी, अब मैं राइट हैंड पे जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ उनको मैं सरसरी सा डिस्कस करूँगा। गुस्सा ईगो इनके अंदर पाया जाता है, अर्ली एज में मुश्किलात भी ये देखेंगे, ठीक है जी। और जो घरेलू टेंशनें हैं वो इनकी तकरीबन 20-25 साल की उम्र में ख़त्म होंगी, और आगे लाइफ लाइन डबल हो रही है, तो अल्लाह ताला इनको फॉरेन सेटलमेंट इनकी करवाएगा। यहाँ पे एक फिश साइन बड़ा बेहतरीन बन रहा है, और ये जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये इसी फिश साइन इनको बाहर के मुल्क भी ट्रैवल करवाया है, और यही फिश साइन आगे इनको यूरोप की तरफ भी लेके जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ लाइनें बन तो रही हैं, लेकिन एक हल्का सा क्रॉस भी बन रहा है। तो जब अगर यहाँ पे मून माउंट पे हल्का सा क्रॉस भी बने, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, कभी कभी आप टेंशन ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, ये उस चीज़ का साइन है। यहाँ पर किस्मत की लाइन यूँ इस तरीके से ऊपर की तरफ इसने स्टार्ट ली है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 24-25 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ये अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। हालांकि लेफ्ट हैंड ये बता रहा था कि प्रॉब्लम आएंगे इनको ना, लेकिन राइट हैंड ये बता रहे हैं कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बल्कि 24-25 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ये अच्छी दौलत कमाएंगे, लेकिन पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, सेविंग इनसे नहीं हो सकेगी। और वीनस माउंट पर ये जो खड़ी 2 लाइनें इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइंस, ये भी इंसान को दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलती हैं। और इसी तरह अगर आपका वीनस माउंट उभरा हुआ हो और इसका एरिया बड़ा हो, तो इंसान के पास अपना घर भी होता है, ये अपना घर भी बनाएंगे, इनके पास गाड़ी भी होगी, बैंक बैलेंस होगा, और अच्छी ये ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो 40 से 50 वाला जो पीरियड है, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। इसमें नॉर्मल से इनके हालात रहेंगे, कोई ख़ास बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी, लेकिन 40 से 50 साल की उम्र में कोई ख़ास फ़ायदा भी इनको नहीं होगा, बस एक नॉर्मल सी ज़िंदगी, बड़ी मुश्किल से अपने जो महीने के खर्चे हैं वो पूरा करेंगे। और 40 से 50 वाला जो पीरियड है वो इनका थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी दिल की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जब आपकी यूं बड़ी उंगली की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, और बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, और अपने रिश्तों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये गर्डल ऑफ वीनस नमा एक लाइन ये नज़र आ रही है, तो ये लाइन जो है ये इंसान को जज्बाती बनाती है, इंसान दिल से ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, जज्बाती फैसले करता है,
जल्दी गुस्से में आता है और गुस्से में आके कभी कभी अपने काम ख़राब भी कर लेता है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर मल्टी टैलेंटेड ऐसे लोग होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर होती हैं, अपने काम में डूब कर काम करने वाले ये लोग होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। लेकिन यही गड़बड़ा बिजनेस अगर टूट टूट के चले तो फिर इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी, जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इंसान कभी कभी गलत रास्तों की तरफ भी चल पड़ता है। तो अभी ये इनकी लाइन जो है वो पावर के साथ है, इनके टूटी नहीं है, ये इस तरीके से चली है और फिर ये इस तरीके से चल रही है। इसका मतलब ये है कि जुपिटर वाली खसूसियात भी इनके अंदर आएंगी कि इनके पास अच्छा खासा नॉलेज है, दीन का नॉलेज है, दुनिया का नॉलेज है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। और यही लाइन इनके अंदर ये चीज़ें जो है इनके जो गुण है बढ़ा देगी। इनके ये चाहेंगे कि ये अपनी ज़बरदस्त जो अल्लाह ताला ने इनको दिमागी सलाहियतें दी हैं, इसके अलावा जो इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, ये अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे और आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी देगा। अगर दिल की लाइन के साथ यूँ इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बने तो इसको भी अच्छा माना जाता है। ये भी इंसान को ओल्ड एज में दौलत देता है, रुपया पैसा देता है और इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा। ओल्ड एज में इनको 2 जगह से इनकम भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। और सन लाइन अभी हल्की बहुत मध्यम है, तो अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफा होगा। यहाँ पर जुपिटर माउंट पर जब आपकी 1-2 लाइन इस तरीके से नज़र आएँ या एक लाइन ऐसे नज़र आए तो ये बताती है कि इंसान आगे बढ़ने के लिए 2-3 काम ज़रूर करेगा, चाहे वो बिज़नेस करे, चाहे ये कोई जॉब करे, तो अल्लाह ताला इनको कुछ ना कुछ कामयाबियाँ ज़रूर अता फरमाएगा। वीनस माउंट जब थोड़ा दबा हुआ होता है आपका ये, तो ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मुश्किलात का बताता है, स्ट्रगल का बताता है। इंसान ज़्यादा रुपया पैसा जमा नहीं कर पाता, मुश्किलात पेश आती हैं। और इसके अलावा जो मैरिज लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। मैरिज लाइफ का मैंने आपको अंगूठे का भी बताया था, अंगूठा भी बता रहा था कि मैरिज लाइफ में मसले बन सकते हैं। और जब आपकी कहीं ना कहीं किसी जगह पे आपकी किस्मत की लाइन बहुत कमज़ोर हो जाए, लेकिन यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन वीक हुई है, तो जहाँ आपकी किस्मत की लाइन वीक होगी, इसके अलावा नीचे से भी थोड़ी सी किस्मत की लाइन वीक हो रही है। हालांकि यहाँ पे ये इस तरीके से बहुत बड़ा फिश का साइन बन रहा है, लेकिन ये फिश अगर किस्मत की लाइन के साथ हो और थोड़ी छोटी हो तब ये फ़ायदा ज़्यादा देती है, ऐसे करके, ठीक है, तब ये फ़ायदा ज़्यादा देती है। तो लेकिन क्योंकि किस्मत की लाइन यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ये तकरीबन 24-25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक अच्छी दौलत कमाएंगे, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। बाकी इनकी मैरिज लाइन को देखा जाए तो मैरिज लाइन ये बता रही है कि जो भी इनका रिलेशन होगा, शादी की लाइन बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जब गिरती है तो वक्त के साथ साथ वो रिलेशन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और शादी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल इनकी मैरिज पहले तो ठीक चलेगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शादी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद भी एक हल्की लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरी शादी का ज़रूर सोचेंगे या शादी के बाद भी कोई लड़की इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी जिसके साथ इनका रिलेशन बनेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, अगर मैं इनकी जन्म कुंडली की भी वीडियो इधर ही बनाऊँ और लोशोबर चार्ट भी बताना शुरू करूँगा तो फिर ये 40-50 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो बाकी जो इनकी लोशो की रीडिंग होगी या जन्म कुंडली की रीडिंग होगी वो मैं इनको इनके व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में इनको मैं रीडिंग सेंड कर दूंगा। और बाकी लोशोबर चार्ट भी और जो है ना वैदिक कुंडली अब वही बातें बताएगी। वीडियो मैं अभी इसलिए क्लोज कर रहा हूँ कि अजानें शुरू हो गई हैं, तो इसलिए, वरना मैं हो सकता है लोशो की और जो वैदिक कुंडली की भी रीडिंग में साथ थोड़ी सी ऐड कर देता, लेकिन अजान इशा की नमाज अजानें शुरू हो गई हैं, तो इसलिए मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करूंगा ताकि मैं नमाज भी पढ़ सकूं और आप लोगों को भी जब आप अजान शुरू हो जाए आप भी अपने काम छोड़ दिया करें और नमाज पढ़ा करें। ठीक है जी। बाकी अगर आप लोगों ने अपना हाथ हीट करवाना है तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हीट करवाना चाहते हैं ना तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपने बहन भाइयों की तरकीब बता देनी है।
कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशो पर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इल्म पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे। और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री ये तीन चार अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।